شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو آپ کا اور پھر حامد یزدانی صاحب کا اور اس کے بعد نعیم اشرف صاحب کا ٹورانٹو میں خوش آمدید. تھینک یو. سوشل میڈیا پہ بہت سارے دوستوں سے جو ہے وہ تعارف کافی عرصے سے ہے. آج بالمشافہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. حبیب شیخ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان سے ان کی تخلیقات بھی مکالمہ پر چھپتی رہی ہیں. اس کتاب کا میں اسپیشل ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جب ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی کہ ہم بک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت سوسن کے پھول بھی زیر بحث آیا تھا کہ کتاب اس کی لانچ ہوگی. مجھے اس کتاب کے پبلش ہونے میں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ مکالمہ پہ سلسلہ وار چھپا, اور دوسرا میری کنٹریبیوشن اس میں یہ تھی کہ ہم جو بھی قسط آتی تھی اس کے حساب سے تصاویر ڈھونڈ ڈھانڈ کر ان لوگوں کی جن سے یزدانی جالندھری یا حامد یزدانی کا رابطہ رہا, وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ادبی تاریخی جو ہے وہ دستاویز بن گئی جس میں ساتھ ویژولز بھی تھے. مجھے بےحد خوشی ہے کہ یہ کتاب شکل میری پیش ہے. جہاں تک آج جس مضمون کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے قابل سمجھا وہ ان کی کتاب ہے مشترکہ محبوبہ. تو میں نے ڈاکٹر صاحب اپنے اس مضمون کا عنوان رکھا ہے اشتراکیت و محبوبیت. یار بہت اچھا, لطف آ گیا. اگر آپ کو خلافت اور ملوکیت کہیں یاد آئے تو یہ واقعہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے امیر حسین جعفری بھائی جو ہیں وہ آج کل فیس بک پہ جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہیں, تو بڑا اچھا ان کا جو ہے نا وہ رسپانس ملتا ہے. تو ایک ہمارے دوست ہیں عامر سہیل, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کتاب کا ریویو اس طرح کا ہو کہ اس میں طنز و مزاح یا جگت بازی زیادہ ہو تو اس کو ہم فیصلہ بادی تنقید کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا میں اتوار کو آپ کے ساتھ اس پر ایک مباحثہ کروں گا. تو خلافت اور ملوکیت تھی کہ اب آپ بارش بھی ہیں. ہاں جی میں وہی اسی طرف آؤں گا کہ اشتراکیت بیسیکلی تو سوشیالوجی کو کہتے ہیں اور آپ کا وہ مضمون بھی تھا, تو اشتراکیت بھی آ گئی اور محبوبیت. ڈاکٹر صاحب کی محبوبائیں تو سب کو پتہ ہے. محبوباؤں میں اشتراکیت بڑا اچھا موضوع ہے. اسی پہ بات ہوگی آج, اسی پہ بات ہوگی. وہ محبوبہ آپ کی بھی ہے اتنی. تو ایک تو پہلا چھوٹا سا مزاحیہ جملہ ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ لوگوں کے تو عام طور پر رضائی بھائی یا بہن ہوتے ہیں یا دودھ شریک, لیکن ڈاکٹر صاحب کے کتاب شریک دوست ہوتے ہیں, اور ان دوستوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب کے ایک ممدوح تو یہ تک کہتے پائے گئے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اپنے سارے کتاب شریک دوستوں کو مدعو کر لیں تو اس حال میں تل دھرنے کی جگہ باقی. اور ڈاکٹر صاحب یہ جملہ دیکھیے گا کہ قاتل تلوں والی محبوبائیں تل ملا کر رہ جائیں. محبوبہ کے ذکر سے یاد آیا ڈاکٹر صاحب اپنی 8 محبوباؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عالمی سلسلہ اشتراکیت و محبوبیت کے زیر اہتمام انہوں نے مشترکہ محبوبہ کا اعلان بھی کر دیا ہے. جی ہاں, آج جس کتاب پر مجھے خامہ فرسائی کا موقع ملا ہے اس کا نام کافی زومانی ہے, مشترکہ محبوبہ. 2 دوستوں کی ادبی تحریروں کا مجموعہ, ایک پارسا اور پاپی کی مشترکہ محبوبہ. اب اس کتاب کا نام تو زومانی ہے ہی, بنانے والے نے اس کا ٹائٹل بھی کچھ یوں بنایا ہے کہ 2 ہاتھ مشترکہ محبوبہ کے بینر کو یوں تھامے ہوئے ہیں کہ اس سے کئی مطالب و مفاہیم اخذ کیے جا سکتے ہیں. بیپ بج گیا, آ جاؤں واپس. ویسے ڈاکٹر صاحب مضمون 9 منٹ اور 48 سیکنڈ کا ہے. کوئی بات نہیں. جی, جیسا کہ نام
मुश्तरका महबूबा है तो कई मतलब निकलते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी के बकौल क्या सौदा खूब नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, या दोनों दोस्त फ़लसफ़ा इश्तराकियत व महबूबियत का अमली प्रचार मुश्तरका महबूबा को थाम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे इन दोनों अदीब दोस्तों का ताल्लुक़ है तो दोनों ही मर्दम खेज़ ख़ित्ता पंजाब के शहरों लाहौर और फैसलाबाद में दौलत हुए। एक ने जवानी लाहौर में गुजारी और दूसरे ने पेशावर। मगर दोनों की मुश्तरका महबूबा का डील डॉल यानी ज़खामत और दबाजत देखकर लगता है कि दोनों पंजाबी और पश्तो फिल्म्स की हीरोइन से काफ़ी मुतासिर हैं। और किताब भी मुटियार की तरह भारी भरकम पसंद है, ना सिर्फ वज़न में बल्कि मयार में। दोनों अदवा में से एक अलल ऐलान खुदा के वजूद से इनकारी है और ख़ुद को पापी कहलाकर या कहलवाकर फ़िरका मलामतिया का प्रचारक है। सूफियों में एक ग्रोह अगर आप जानते हो, वो उन सूफियों का होता है जो हर चीज़ की मलामत करके नफ़ी इसबात का सबक पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ताहाल नफ़ी के सबक पर ही इक्तफा किए हुए हैं, जबकि फरीक सानी यानी हामिद यज़दानी को डॉक्टर साहब ने पारसा का चोगा पहनाकर उनकी दिली हसरतों और दबी ख्वाहिशों के निकास में एक तरह का अमर माने कर दिया कि हम पारसा हो ना हो मगर लोग क्या कहेंगे की वजह से पारसा बने रहने पर मजबूर होते हैं। और अगर दोनों अदबा जैसे आज साथ साथ बैठे हैं तो इनकी सफ़ेद रीश देखकर अगर कोई इनसे वाकफियत ना रखता हो तो इनको मौलाना रूमी के मुरीदाने बासफ़ा समझकर बैत पर आमादा हो जाए। किताब चूँकि मुश्तरका महबूबा के बारे में है और ये मुश्तरका महबूबा ना सिर्फ हर दो मुसन्निफ़ीन की महबूबा है बल्कि हम सब भी इस कताला आलम की जुल्फ़े गिरागीर के असीर। जी हाँ, अदब और अदबी तहरीर। ये किताब दो दोस्तों के दरमियान कुछ खतूत के तबादलों और कुछ अदबी मार्का आराइयों के साथ साथ उनके अपने अदबी सफ़र और उनके इल्मी और अदबी खानवादों के बारे में हमें मालूमात फराहम करती है। एक तरफ तो यज़दानी जालंधरी साहब जैसे जय्यद अदीब हैं जो अपनी हमा सिफ्त और जहद शख्सियत की वजह से एक जाना पहचाना नाम है, और उनकी औलाद अपने वालिद के काम और नाम को ना सिर्फ रोशन रखे हुए है बल्कि उसे आगे बढ़ाने में भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। वहीं हमारे दरवेश जो ख़ुद को किताब में खिज़र, दरवेश, पापी जैसे इल्काबात से मुतकल्लम करते हैं, अपने ताया आरिफ अब्दुल मतीन से अदबी तरबियत और रहनुमाई का खरका पहने हुए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 73 बरस में कम बेश इतनी ही किताबों को मनसाए शहूर पर ला चुके हैं। क्या बात। मुझे इस किताब के यूँ तो सारे ही बाब बहुत पसंद आए, मगर उनके खतूत में से सबसे पसंदीदा हिस्सा वो है जिसमें अदबी शख्सियात और इन दोनों अदीबों के अपने बुज़ुर्गों के साथ अदबी रिश्ते का तज़किरा आया है। एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो दोनों अदीबों की अदबी दिलचस्पी को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए इनके बुज़ुर्गों की तरफ से की गई हौसला अफजाई, और जिस अदबी विरसे को ये दोनों शख्सियात लेकर आगे बढ़ी हैं वो ना सिर्फ इनकी ज़ात, हरकात व सकनात बल्कि तहरीरात से मुतरश्शि है। मुझे इन खतूत में से डॉक्टर खालिद सुहेल का अपने ताया आरिफ अब्दुल मतीन के हवाले से लिखा गया ख़त बहुत दिलचस्प लगा। वहीं उनका मुनीर नियाज़ी से मुलाकात वाला ख़त भी एक अदबी तारीख़ मुरतब करने के मुतरादिफ है। यहाँ पर मैं मुनीर नियाज़ी के हवाले से एक छोटा सा चुटकुला पेश करना चाहूँगा कि मुनीर नियाज़ी भी मेरे दोनों अदीब दोस्तों की तरह सफ़ेद बाल तो रखते थे मगर सफ़ेद रीश नहीं थे। एक बार कराची गए तो जॉन एलिया ने उनसे कहा, मुनीर खां तुम्हारे तो सारे बाल सफ़ेद हो गए। मुनीर नियाज़ी ने जवाब दिया, जानी जो मुझ पर गुजरी है उसमें सिर्फ बाल ही सफ़ेद हुए हैं, अगर तुम पर गुजरती तो तुम्हारा खून तक सफ़ेद हो। डॉक्टर साहब ने अपने खतूत में जाहिद डार के हवाले से बहुत खूब बयान किया है, बल्कि जाहिद डार का कहा गया ये जुमला मैं ख़ुद पर भी साथ करता हूँ कि दुनिया में पहले ही लाखों अच्छी किताबें लिखी जा चुकी हैं जिन्हें पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इन हालात में किताब क्यों लिखी जाए।
दूसरी जानिब हामिद जज़दानी साहब अपने वालिद ग्रामी का जिस मोहब्बत, अकीदत और मुअद्दत से ज़िक्र करते हैं और उनसे जिस तरह नफासत और कनाअत और इताअत का सबक उन्होंने सीखा है और अपनी ज़िंदगी को उनके सुनहरी उसूलों के मुताबिक बसर किया है, वो यकीनन काबिल तकलीद है। हामिद जज़दानी ने इकबाल साजिद के हवाले से एक बहुत उम्दा ख़त लिखा है, जिसने मुझे इकबाल साजिद की तहक़ीक़ात को पढ़ने का मौका फराहम किया। इकबाल साजिद की कुलियात में से एक शेर और उससे जुड़ा लतीफ़ा पेश है। वो कहते हैं कि नए ज़माने में इनका जवाज़ कुछ भी नहीं, नए ज़माने में इनका जवाज़ कुछ भी नहीं, फ़िराक़ व फैज़ व नदीम व फ़राज़ कुछ भी नहीं। मज़कूरा शेर के बाद एक बार अहमद फराज ने इकबाल साजिद से गिला किया कि मैं तो जदीद ज़माने का शायर हूँ और तुमने मेरा जवाब भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तब साजिद ने बड़ी बेनियाजी से कहा कि फैज़ और नदीम तो बहरहाल ऐसे शायर हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तुम इस सफ में भी नहीं आते, तुम्हारा नाम तो शेर में काफिया की मजबूरी की वजह से आता है। आखिर में दोनों मेहरबान अदीब दोस्तों का पुरखुलूस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनके खतूतबाजी की वजह से ना सिर्फ हमें इनके अदबी सफ़र के मुतल्लिक़ आगाही मिली, वहीं मुआसर अदब और अदीबों के बारे में बहुत सी तफासील आने वाली नस्लों के लिए महफूज हो गई। किताब की इशाअत पर भरपूर मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया।